और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो जो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है अ फॉरेनर मैरीज अ हिंदू इंडियन मैन, माय पनिशमेंट फॉर मैरिंग हिम, कैरोलिना गोस्वामी। और कैरोलिना गोस्वामी की हमें काफी ज्यादा वीडियोस देखी हैं, बहुत अच्छी हैं और ये भी वीडियो हमें सजेस्ट की गई है और नाम मैं भूल गई हूँ। अभी हम देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का, इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। So recently I posted a video on YouTube in which I shared my personal experience regarding marrying a Hindu man from India, and since then I've been receiving non-stop hate comments. What type of mentality is this? According to the haters, I've done the most terrible thing by marrying a Hindu, and my main fault is that I didn't get my husband to convert to Christianity and didn't baptize our child. After I posted the video, the worst possible things that one can imagine have been wished upon me. I deleted as many of them as I could, and here are some milder ones. Hello Carolina, I should thank your relatives and fellow citizens of your country for objecting your marriage to Hindu man because Hindus worship idols. Well, that is a limited understanding about Hindus. As far as my understanding is concerned, Hindus don't worship idols. Hindus worship all-pervasive divine reality that manifests in so many ways. Here is another one that suggests that I will be going to hell for marrying this man. And this one says, being a civilized person, you married a Hindu guy, so you have fallen down the darkness. So I want to ask these haters. These comments prove that your ideology or your own belief system failed to make you a better person. In that case, how can you be so confident that your ideology will make others better human beings? Yes, there are haters in almost all religions, but after living with Hindus and Dharmic people, I have understood what it means to be accommodating and accepting. And yes, the Western societies which still consider tolerance as a great virtue should finally try understanding this. Give this a thought. Is being tolerant really that respectful? For instance, can you tell your guests who visit your home that you are tolerating them? Obviously not. That is why a step far higher than that is to be accommodating and accepting. An American research reveals that 73% of Asian American Hindus celebrate Christmas, and 30% of them sometimes attend services of other religions. An overwhelming 91% of Asian American Hindus believe that many religions can lead to eternal life. On the other hand, 72% of Asian American evangelicals say that their religion is the one true faith. Our son is benefiting by absorbing the best of both cultures, and we as a family are ready to learn the best values that come from our own cultures or from elsewhere. Let's get rid of the mentality that promotes I am better and smarter than you. Let's not even try to make it a religion versus science debate. The world has already seen enough of religious and scientific misconducts, and that is why, instead of targeting people or communities, we should target the mentality that wants to harm others. True. And finally, give these words a thought. For those who believe in the idea of global conquest by the religious monoculture, how can they even claim to believe in the idea of the coexistence of multiple cultures? For those who want exclusivity and expansion, how can they claim to support multiple paths and views? Promoting religious monoculture kills diversity. If diversity dies, the idea of pluralism dies too. Perhaps that is why the biggest paradox of the 21st century is that monotheistic ideologies are trying to preach to us the importance of pluralism. बात करें अगर आज की वीडियो की, तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा जो है देखने में आती है कि जब एक रिलीजन का जो पर्सन है वो दूसरे रिलीजन के पर्सन से जो है शादी करता है तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म की जाती है। बिल्कुल, और ये चीज़ें वाकई में एग्जिस्ट करती हैं। इवन कि अगर हम लोग यहाँ पर भी देखें, बट मेरे लिए थोड़ी वाकई में हैरानगी की बात थी कि क्रिश्चियनिटी में भी इस चीज़ को नहीं होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। क्योंकि इंटर मैरिजेस जब भी आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा, आप एक तो प्रेशर
प्रेशर होता है, ऑनेस्टली बताती हूँ, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। सबसे पहले तो कोई मानता ही नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं स्पेशली यहाँ पर इंडिया में तो नो डाउट एक बोल देंगे कि एक ट्रेंड चला हुआ बहुत टाइम से कि वहां पर डिफरेंट रिलीजन के लोग एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं, बट मुझे उनका पॉइंट बहुत अच्छा लगा और वो चीज मुझे मतलब समझ में आती है कि हम लोग इतना ज्यादा इस चीज में, इस डिबेट में क्यों पड़े रहते हैं कि भाई आपका रिलीजन हमारे रिलीजन से अच्छा नहीं है, हमारा रिलीजन आपसे अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि रिलीजन इतना पर्सनल मैटर है कि इसको आपको इतना ज्यादा एग्जैजुरेट नहीं करना चाहिए, और ये आपका और ऊपर वाले के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी बात की क्रिश्चियनिटी में भी इस तरह होता है, तो मैं कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो कि यहाँ से या इंडिया से जो है यूएस गए हैं, तो वहाँ पे जो है उन्हें बहुत ज्यादा कहा जाता था कि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं। अच्छा। हाँ, वो मुझे बताते हैं, वो जो है ना बातें जब शेयर करते हैं तो मैं खुद बहुत ज्यादा हैरान होता हूँ कि मतलब ये चीज अगर मुसलमानों में पाई जाती है तो क्रिश्चियन में भी बहुत ज्यादा पाई जाती है कि आप जो है कन्वर्ट हो जाएं, हमारा जो है वो रिलीजन जो है बहुत पुराना है, सबसे सही है, ये है, इस तरह की जो है वो काफी ज्यादा जो है उन्हें कहा जाता है। मतलब तो हाँ, तो मैं भी जब क्या नाम लेते हैं, मैंने भी स्टार्टिंग में ये चीज सुनी थी ना, तो मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हुआ था। दूसरी मैं ये बात करना चाहूंगा, वाकई रिलीजन हर बंदे का अपना जो है पर्सनल मैटर है। कई लोग हैं जो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, कई नहीं करते, कई एथिस्ट होते हैं, तो ये उनका एक पर्सनल मैटर है। इसमें जो है आपको नहीं पढ़ना चाहिए कि वो अपने बारे में क्या सोचता है, किसी के बारे में क्या सोचता है। मोस्टली हमारे यहाँ पे लोगों को जो है ना, वो कहते हैं ना चुल होना, वो होती है एक दूसरे को तंग करने की। जो वेले लोग होते हैं ना कि काम नहीं होता, फजूल के कमेंट करेंगे, इस तरह की चीजें करेंगे कि अगला बंदा जो है ना हार्ट हो। बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर मैं अपनी सोसाइटी की बात करूं तो हमारी सोसाइटी काफी कंजर्वेटिव है इस चीज में, बहुत ज्यादा। आप ये बोल सकते हो कि आप मतलब वाकई में अलाउ नहीं है इस चीज को, मैं ओपनली इस चीज को बोलूंगी। लेकिन ये कि अभी बहुत, जैसे मैं क्रिश्चियनिटी पर बहुत ज्यादा हैरान हो रही हूँ, बहुत सारे लोग भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बात करेंगे कि भाई इस्लाम में भी तो ऐसा नहीं है, आप हैरान क्यों हो रही है। मैं हैरान इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मुझे चीजों का पता नहीं था। मुझे मतलब अपने रिलीजन के बारे में तो पता था कि मतलब इसमें अलाउ नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी अलाउ नहीं है, ये मेरे लिए एक नई चीज है, इसलिए मैं हैरान हो रही हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि ना अभी के टाइम में जो टाइम चल रहा है, इसमें सब लोगों को ये इस डिबेट से बाहर निकल कर, क्योंकि हम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है कि अगर मतलब मैं किसी को इम्प्रेस करना चाहती हूँ, ठीक है ना, उसके लिए मुझे किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, या उसको बोलने की जरूरत नहीं है भाई कि तुम मेरे रिलीजन में आ जाओ। आप प्रैक्टिकली जो चीजें कर रहे होते हैं उनसे मे बी कोई इंस्पायर होकर किसी को अच्छा लगे, भाई ये कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है या इसकी इतनी अच्छी आदतें हैं, वो चीजें जो उनसे आई थिंक वो ज्यादा मैटर करती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस मजहब में है, हर किसी को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर किसी को एक दूसरे की फेथ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगी हमारी, क्योंकि हमारी व्यूअरशिप जो उनसी है वो ज्यादातर इंडिया से है, और हम लोगों को पता है कि वहां पर ज्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम नॉन वेज फूड इवन के अपने व्लॉग्स में भी ज्यादा ना दिखाएं, क्योंकि हम किसी को भी हर्ट नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करूंगा, एक और चीज जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा काउंट की जाती है कि हर मजहब में जैसे जो है फिरके होते हैं, इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी हैं, तो जो है वो भी बहुत ज्यादा करते हैं इस चीज को लेकर। आई थिंक ज्यादा नहीं है, मैं 4 हैं, लेकिन वो इस चीज को लेकर बहुत करते हैं। जैसे उन्होंने हिंदुइज्म का बताया कि वाकई में हमारे सब लोगों की, जो लोग नहीं जानते इतना हिंदुइज्म के बारे में, हम लोगों की सोच यही होती है पहले कि जो हिंदू हैं वो आइडल वर्शिप करते हैं, और लेकिन ये कि वीडियोस देखने के बाद आपको आइडिया होता है कि नहीं, वर्शिप आइडल की नहीं की जाती। तो मुझे ऐसे लगता है कि ना बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं जब आप चीजों को जानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं, और मेरा ख्याल में आपको, अगर आपका कोई एक अच्छा दोस्त है या आपकी किसी के साथ अच्छी इस तरीके की गपशप है कि वो आपको समझता है, अगेन मैं कहूँगी कि वो समझता है या समझती है आपको, तो आप मेरे ख्याल में अगर डिफरेंट लोगों के साथ इसके बारे में बात करें, वैसे तो बोलते हैं कि रिलीजन के मैटर पर कभी बात नहीं करनी चाहिए, डिबेट नहीं करनी चाहिए, वो आर्ग्यूमेंट में
में चेंज हो जाता है। ऐसे ही। बट मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब हम बात करते हैं उनके साथ तो वो हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए, आपके पास कोई ऐसा बंदा होना चाहिए ताकि ये जो गलत फहमियां ये खत्म हो सके। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं जो कि, क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ पे लोग आपकी वाली बात के बाद कहीं से स्टार्ट होती है तो वो आर्गुमेंट्स तक पहुंच जाती है। उसका रीज़न क्या होता है कि हम जो लोग हैं ना वो इतने ज़्यादा डीप उस चीज़ को जानते नहीं हैं, हमें पता नहीं होता। फिर हम अपनी बात को वो सच मनवाने के लिए जो है ना हम आर्गुमेंट्स करते जाते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक कैरोलिना गोस्वामी जी की बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर इंसान की जो है ना अपनी लाइफ होती है, उसे अपने डिसीजन लेने का खुद हक होता है। उन्होंने अपना डिसीजन लिया, लोगों को जो है वो अब वो कमेंट्स तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि उनकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करें कि आपने क्यों शादी की, आपने कन्वर्ट क्यों नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर जैसे लोग बोल रहे हैं कि आप जहन्नुम में जाएंगे, भाई जहन्नुम में जाएंगे तो आपको साथ थोड़ी ना लेकर जाएंगे, वो खुद ही जाएंगे। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वो एक ना कहावत थी कि दो बंदे जो है ना खड़े होके दूसरे बंदे की बात कर रहे थे, तो उसमें से एक बंदे ने कहा कि भाई तूने इसकी कब्र में इसके साथ थोड़ी जाना है, तूने अपनी कब्र में जाना है, उसने अपनी कब्र में जाना, करने दे काम। लेकिन फिक्र हमें दूसरे की कब्र की होती है ना। प्रॉब्लम ये तो हमारी सोसाइटी की बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को ना अपनी चीजें मौजूद वाली बात के मनवाने की आदत पड़ गई हुई है कि नहीं हम ही ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी जो सोच है ना और आप प्रैक्टिकली जो चीजें करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। क्योंकि देखो भाई, जिसका जो बिलीफ है उसको उसी पर लगे रहना चाहिए। अभी अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मेरा ख्याल में मुझे इसी में सुकून है, अगर कोई क्रिश्चियन है या हिंदू है, पारसी है, उसको उसी में सुकून मिलेगा। तो फिर किस चीज की लड़ाई है और क्यों एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हो और ये बोलने में कि भाई तुम वो चाहे जहन्नुम में जाए ना जाए, आप जहन्नुम में जरूर चले वो बस क्या नाम लेते होती है ना, एक बंदे को चुल्ली कहले होती है ना, वो उसे तंग करती रहती है बस। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से कैरोलिना ने वीडियो में बताई और जो उन्होंने एक पॉइंट डिस्कस किया कि प्रमोटिंग रिलीजियस मोनोकल्चर किल्स डाइवर्सिटी। और वाकई में ये चीज उनसे एग्जिस्ट करती है। एंड इफ डाइवर्सिटी डाइज द आइडिया ऑफ प्लूरलिज्म डाइज टू। तो वाकई में अब आप देखो, अगर आप ये चाहो कि भाई अब आप ही का रिलीजन जो सा है वो ही हर जगह हो और डोमिनेट करे, तो बाकी जिन लोगों के डिफरेंट पाथ्स हैं वो तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, वो तो फिर रह ही नहीं सकते, सरवाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन देखा जाए ना, सारे रिलीजन्स को अगर देखा जाए तो ऐसे जो है ना बहुत कम लोग होते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट टाइप होते हैं। वरना मोस्टली देखे ना वो उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं होता कि उसका रिलीजन क्या है, वो क्या करता है क्या नहीं करता। एक बहुत लिमिटेड स्केल पे ऐसे लोग हैं, एक मिनट में बात कर लूं, लेकिन जो है वो जो लिमिटेड स्केल पे लोग हैं ना वो इतना वलवला करते हैं ना, इतना शोर करते हैं कि वो बहुत ज्यादा सुनाई देता है। बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मौजम हम लोग लाहौर में रहते हैं तो लाहौर में हम लोग को ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर हम जैसे थोड़ा बैकवर्ड एरियाज में चले जाते हैं, गाँव में चले जाते हैं, या फिर हम लोग साउथ पंजाब वाली साइड पर चले जाते हैं, मेरा ख्याल में मेरे जैसी बंदी भी जाते हैं वहां पर डरेगी भाई कि मतलब मुझे डर लगेगा क्योंकि इतना ज्यादा वहां पर फ्रीडम नहीं है। ओपन माइंड इतने ओपन है ना लोगों के। लगता है कि ये चीज उनसी है, डिपेंड करती है लोगों पर भी कि लोगों को अवेयरनेस कितनी होती है। बट अगेन मैं ये बात बोलूंगी कि जितनी आप मतलब एक डाइवर्सिटी हम लोगों ने वीडियोस के थ्रू इंडिया में देखी है, चाहे वो कल्चरल है या फिर रिलीजियस है, वो आपको कहीं और नहीं नजर आए। ऐसा ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर आप मतलब ग्रो करना है या आपको अच्छे तरीके से रहना है तो उसके लिए मतलब पेशेंस लेवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी को बर्दाश्त करें, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। हर रिलीजन, अगर मैं किसी भी रिलीजन की बात करूँ ना मौजूद, तो हर रिलीजन की बेसिक रूट्स जो उनसी हैं वो हम लोगों को अच्छी चीजें ही सिखाती हैं। बिल्कुल सही बात। प्रॉब्लम लोगों में है जो कि एक दूसरे को जज करना शुरू हो जाते हैं और उनको पता नहीं क्या क्या वही मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, एक लिमिटेड लोग है लेकिन वो जब शोर करते हैं ना वो सुनाई बहुत देता है। वेल ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो थी, काफी चीजें जो उनसी हैं इससे क्लियर भी होती हैं। और मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि किसी की जो भी पर्सनल ओपिनियन है, सीरियसली सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट दें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो हम एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए कर देते हैं वो चीजें इतनी बड़ी बन जाती हैं कि फिर वो किसी बहुत ही भयानक हादसे की शक्ल ले लेती हैं। तो बस मैं सब लोगों
से यही एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अपना पेशेंस लेवल हमेशा मेंटेन रखें और प्लीज चीजों को समझें। कोई किसी चीज को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ये आपका इससे कोई लेना देना नहीं, ये उसका पर्सनल मैटर है। और इसी के साथ अब हमें इजाजत, हमारी वीडियोस लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर।